Alright, so hey everyone, welcome back to another exciting video. And in this particular video, let's talk about the AT protocol. So बात करते हैं that ये AT protocol क्या है, what is this decentralized social media network protocol, what is this particular thing, and this particular protocol was made by the co-founder of Twitter. And इसके पीछे का जो motive है वो actually में बहुत बड़ा है, the impact is very big. And let's understand what is this AT protocol, what do you think about it? And it's been a few months जब मैं इस protocol के बारे में पढ़ रहा हूँ and I actually liked this particular stuff. So with that, let's start with the video. So as I told you before, this particular protocol was made by Jack, okay? matlab not made by, basically it was backed by Jack, who is basically a co-founder of Twitter. He was a co-founder of Twitter, okay? So AT protocol जो है उसका मतलब basically motive क्या था? That is, this is the authenticated transfer protocol. He wanted to build a decentralized open source network technology for the social media. That means he wanted कि जो social media है, like Twitter है, जितने भी हमारे social media applications हैं, उसके लिए एक standard protocol होना चाहिए, एक open source decentralized protocol होना चाहिए. The reason is, if you see like Twitter या फिर आप कोई भी social media app की अगर बात करते हो, it is a very close network. It is a very close network and companies like Twitter decide करती हैं that first of all क्या मैं उनके platform पर रह सकता हूँ या नहीं, right? They decide. These companies can anytime ban anyone. Secondly, ये decide करते हैं that किसको क्या feed दिखानी है. They have the control over the algorithm of the recommendations and everything. So this was the exact problem that Jack wanted to solve using the AT protocol, so that जो हमारा social media है, which is the core of today's internet world, उसको हम open source कर पाए, decentralize कर पाए, so that no one can control it. So this was the main motive behind the AT protocol, right? So AT protocol जो था, इसकी एक implementation था Blue Sky project. I'm pretty sure आपने Blue Sky app के बारे में पक्का सुना होगा. So Blue Sky app was one of the client of the, या फिर I can say implementation of the AT protocol, that is authenticated transfer protocol. Okay. So अगर हम यहाँ पे थोड़ा जाते हैं, that it was developed through the Blue Sky project, which he funded while at Twitter. And अगर हम थोड़ा नीचे आते हैं तो इसका फाउंडेशन क्या था? The AT protocol is designed to be federated. This is a very important word, federated network, where many sites run the network similar to SMTP. Okay. तो ये फेडरेटेड के बारे में भी मैं यहाँ पे बात करूंगा. तो मैंने यहाँ पे ना कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं. सो आई टेल यू अबाउट दिस फेडरेशन आर्किटेक्चर. एंड दिस फेडरेशन आर्किटेक्चर इज एक्चुअली अ वेरी कूल थिंग. मतलब अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है, इफ दिस गेट्स अडॉप्टेड, सो लाइक हैविंग अ फेडरेशन आर्किटेक्चर इन द सोशल मीडिया, ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. ओके. एंड देन रादर देन सिंगल एंटिटी कंट्रोलिंग इट, goal of decentralization, the blue sky involvement of course, and the public good vision. So this was the whole motive. पहले motive की बात करें कि why this particular project, why this AT protocol even existed. Okay, so now I think you got the motive कि basically हम नहीं चाहते कि कोई एक single entity पूरे social media को control करे. It should be decentralized. Now then that is where the AT protocol was born. So AT protocol का मतलब होता है authenticated transfer protocol और AT protocol. ये एक स्टैंडर्ड बना फॉर पब्लिक कॉन्वर्सेशंस एंड ओपन सोर्स फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग सोशल मीडिया एप्लीकेशंस. इस एटी प्रोटोकॉल की ब्यूटी ये थी, एनी वन कैन जॉइन दिस नेटवर्क, एनी वन कैन लीव दिस नेटवर्क, एनी वन कैन माइग्रेट इन दिस पर्टिकुलर नेटवर्क, एंड उसके ऊपर वो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकते हैं. एवरी वन कैन हैव देयर ओन एप्लीकेशन, ओन क्लाइंट, ओन वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद द सोशल नेटवर्क, बट अल्टीमेटली हर चीज़ एक जगह जाके कोलेट हो जाए. सच अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट दैट दे वर वर्किंग ऑन. तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे स्टार्ट हुआ था? बेसिक कॉन्सेप्ट, दिस ऑल इज फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन. तो अगर आप एटी प्रोटोकॉल की डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे, यू कैन सी एवरीथिंग इज हियर. तो सबसे पहला इसका जो कॉन्सेप्ट आया, दैट वाज बेसिकली कि आइडेंटिटी, एक यूजर की आइडेंटिटी इज द की, राइट? डजेंट मैटर कितने सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं. लेट्स से आपके पास एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है ब्लू स्काई, लेट्स से आपके पास है ट्विटर, आपके पास है इंस्टाग्राम. यू शुड होन वन आइडेंटिटी एंड दैट इज योर डोमेन नेम. सो दैट मीन्स जो भी आपका डोमेन नेम होगा वही आपकी आइडेंटिटी है. सो इवन इफ आई हैव like 10 different accounts on different social medias, I own one identity जो मेरा डोमेन नेम है. सो इसमें डोमेन नेम वेरिफिकेशन होती है. Like you have to go into your DNS settings and you have to add some records, and that becomes your username. So मेरे केस में मेरा username क्या होगा? piyushgarg.dev. And of course it is always going to be unique. Okay. तो यहाँ पर आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या आता था? आइडेंटिटी, दैट इज योर डोमेन नेम, दैट इज योर दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड देन यू हैव दिस पर्टिकुलर थिंग दैट इज योर URL. ओके. तो आपका ये URL बन गया, दैट इज AT protocol alice.com, एंड दिस इज समथिंग नोन एज अ DID, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे. दिस इज एक्चुअली योर डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी मैनेजमेंट. तो ये डिसेंट्रलाइज ID, ये बेसिकली आपकी एक ID है विच स्टेज कॉमन अक्रॉस ऑल द नेटवर्क, और ये कभी भी चेंज नहीं होते. दिस इज अ क्रिप्टोग्राफिक URL.
अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सबसे पहला क्या निकल कर आया, दैट इज अ डेटा रिपोजिटरी। व्हाट दे हैव सेड कि हर यूजर की ना एक डेटा रिपोजिटरी होगी, एक पीडीएस के ऊपर, पर्सनल डेटा सर्वर के ऊपर। दैट मीन्स जो भी मैं काम करता हूँ, लेट्स से मैंने पोस्ट क्रिएट किया, मैंने किसी को कमेंट किया, मैंने किसी की पोस्ट को लाइक किया, मैंने किसी को फॉलो किया, मैंने कोई फोटोज अपलोड की, जो भी मेरा डेटा है दैट विल बी स्टोर्ड इन अ डेटा रिपोजिटरी। तो हर यूजर का एक डेटा रिपोजिटरी मेंटेन करना होगा सर्वर के ऊपर। दिस वाज द वेरी फर्स्ट थिंग ऑफ दिस प्रोटोकॉल, जिसको यूजर के डीआईडी से हम साइन करेंगे। यहाँ पे हमने अभी डीआईडी बनाया था ना, जिसको हम साइन करेंगे। सो एवरीथिंग स्टेज इन अ रिपोजिटरी रिकॉर्ड, इन अ डेटा रिपोजिटरी। आपकी अपनी एक रिपोजिटरी होगी, मेरी अपनी एक रिपोजिटरी होगी, एंड दैट विल बी क्रिप्टोग्राफिकली साइंड यूजिंग माई डीआईडी। ओके, दिस इज वन थिंग। एंड इस रिपोजिटरी के अंदर मेरा सारा डेटा है। देन देर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरेशन, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। सो फेडरेशन का बेसिकली मीनिंग क्या है, अगर हम यहाँ पे फेडरेशन में जाते हैं, आपने नोटिस किया होगा, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स से आपने एक ईमेल एड्रेस लिया, लेट्स से समथिंग एट gmail.com। मेरे पास एक ईमेल एड्रेस है piyush.dev@gmail.com। मेरे पास एक और ईमेल एड्रेस है, लेट्स से दैट इज ऑन आउटलुक, लेट्स से piyush@outlook.com। क्या आप मेरे को ईमेल कर सकते हो ऑन माय आउटलुक अकाउंट यूजिंग योर जीमेल? The answer is yes. How Gmail is able to communicate with someone on Outlook? या फिर क्या Outlook वाला यूजर आपके Gmail के ऊपर आपको मेल कर सकता है? Of course yes, we both can have a conversation. दो, मेरा जो Outlook अकाउंट है वो Microsoft हैंडल करता है, मेरा जो Gmail अकाउंट है वो Google के सर्वर्स हैंडल करते हैं, बिकॉज देयर वाज वन कॉमन प्रोटोकॉल नोन एज SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिमिलरली फेडरेशन आर्किटेक्चर का यही मीनिंग होता है, दैट एटी प्रोटोकॉल ने भी क्या किया, इन्होंने भी फेडरेशन आर्किटेक्चर को अडॉप्ट किया। यू कैन होस्ट योर ओन पीडीएस, इसको कहते हैं पर्सनल डेटा सर्वर। आई कैन होस्ट माई ओन पीडीएस, एंड देन वी कैन इवन कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग द रिले सर्वर। सो दैट मीन्स बिकॉज इट्स अ डिसेंट्रलाइज नेटवर्क, एनी वन कैन होस्ट देयर ओन पर्सनल डेटा सर्वर। ब्लू स्काई इज वन ऑफ द पीडीएस। मैं खुद का एक पीयूष के नाम से पीडीएस होस्ट कर सकता हूँ। यू कैन कम, यू कैन साइन अप देयर, एंड आपकी जो रिपोजिटरी है वो वहां पर स्टोर होगी। सो इफ यू कैन सी, यहाँ पर मेरे पास एक पीडीएस है, पर्सनल डेटा सर्वर। लेट्स से दिस पर्टिकुलर पीडीएस इज होस्टेड ऑन piyushgarg.dev। ठीक है, मैंने खुद का एक पीडीएस बनाया। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, जो भी यूजर मेरे डेटा सर्वर के ऊपर आके साइन अप करेंगे, मैंने उनकी रिपोजिटरीज बनाई और उनको साइन किया। दिस इज अ एटी प्रोटोकॉल इंप्लीमेंटेशन। सिमिलरली हो सकता है वहां पर एक और पीडीएस है जिसके अंदर मल्टीपल डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ये इनका यूजर डेटा हैंडल कर रहा है। So these PDS can basically go through the relay server and they can communicate with each other. So that's a federation architecture. So that means अगर एक प्लेटफॉर्म मेरे को ब्लॉक कर देता है फॉर सम रीजंस, आई कैन गेट माई डेटा एंड आई कैन मूव टू द अदर नेटवर्क। दैट वॉज द फेडरेशन आर्किटेक्चर। ओके, सो दैट मीन्स अगर हम वापस यहाँ पर जाते हैं, द एटी प्रोटोकॉल सिंक्स द रिपोजिटरीज इन अ फेडरेटेड नेटवर्क मॉडल। फेडरेशन वॉज चोजन टू इंश्योर द नेटवर्क इज कन्वीनियंट टू यूज एंड रिलायबली अवेलेबल। रिपोजिटरी डेटा, ठीक है, रिपोजिटरी डेटा मतलब यूजर डेटा इज सिंक्रोनाइज बिटवीन सर्वर्स ओवर स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजीज लाइक HTTP एंड वेब सॉकेट्स। The three core services in our network are PDS, personal data network, personal data server, big graph service, ठीक है, जो बेसिकली उसको एग्रीगेट करती है, एंड द ऐप यूज बेसिकली जो आपका क्लाइंट है। वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द फीड जनरेशन एंड लेबलर्स। ओके, अब आगे चलते हैं। द इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का मतलब है दैट देयर इज अ फिक्स्ड स्कीमा। ऐसा नहीं है कि लेट्स से जीमेल की एपीआईज एक डिफरेंट फॉर्म में डेटा रिटर्न कर रही हैं और आउटलुक का डेटा एक डिफरेंट फॉर्म में डेटा रिटर्न कर रहा है। यहाँ पर देर इज समथिंग नोन एज इंटरपोलेशन। सो दे हैव इंटरनली मेड अ स्कीमा नोन एज लेक्सिकन। ओके, लेक्सिकन जो क्या करता है, यूनिफाई करता है नेम्स एंड बिहेवियर्स ऑफ द कॉल अक्रॉस द सर्वर्स। सो दैट मीन्स यू कैन बी ऑन द सर्वर ए, आई कैन बी ऑन द सर्वर बी, एंड हम एक दूसरे को भी कॉल कर सकते हैं बिकॉज देर इज एन इंटरपोलेशन, बिकॉज जो जो स्कीमा है हमारे एपीआईज का वो सेम है। So there is a basically interpolation. So that's a very good thing. Just like HTML, right? HTML आपके लिए भी सेम है, HTML मेरे के लिए भी सेम है। अगर आप एक HTML को सफारी में ओपन करोगे या फिर एक क्रोम में ओपन करोगे, इट बेसिकली डज द सेम थिंग। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास क्या है, यू हैव अ इंटरपोलेशन। दैट मीन्स कि अगर आपने कोई क्लाइंट बनाया है, दैट क्लाइंट कैन बी यूज टू टॉक टू एनी नेटवर्क दैट इज ऑन द AT नेटवर्क। सो दैट्स वन थिंग। ऑफ कोर्स आई मीन इट्स अ प्रोटोकॉल, इसका वो काम है उसको इन्फोर्स करना। सो दिस इज वन मोर थिंग। Then there is an achieving scale, the crawling indexes. तो यहाँ पे what happens is, let's say you have multiple PDS,
अगर एक पीडीएस के किसी यूजर ने दूसरे पीडीएस के किसी यूजर की कोई फोटो लाइक कर दी, सो देयर इज अ क्रॉस नेटवर्क, तो ये क्रॉलर्स को पता लग जाता है कि ओ देयर इज वन मोर पीडीएस, वो उसको डिस्कवर कर लेता है और वो उसको भी ग्रेजुअली क्रॉल करना शुरू कर देता है। एंड इवेंचुअली दैट ऑल डेटा इज एग्रीगेटेड टू वन फायर होस्ट, जिसमें आप सारा एग्रीगेटेड डेटा देख सकते हो दैट कौन किस नेटवर्क पे क्या कर रहा है। अगर आप ब्लू स्काई के मेन नेट उस पे जाओगे, लेट्स गो टू एटी प्रोटोकॉल का वेबसाइट। ओके, आई एम नॉट प्रिटी श्योर वो एटी प्रोटोकॉल के वेबसाइट पे था या ब्लू स्काई पे था, बट लेट्स ओपन बोथ। तो मैं आपको एक फीड दिखाता हूँ। ओके, या दिस इज द वन। सो यू कैन सी दैट देयर इज अ पब्लिक फायर हाउस। दैट मीन्स लेट्स से मैंने खुद का एक पीडीएस सर्वर होस्ट किया और मेरे किसी यूजर ने पब्लिक किसी और ब्लू स्काई के नेटवर्क के ऊपर किसी की फोटो लाइक कर दी। ओके, नाउ दिस पब्लिक फायर हाउस, दिस पर्टिकुलर द क्रॉलर नोज कि पीयूष कर का भी एक पीडीएस एग्जिस्ट करता है, तो ये उसको भी क्या करेगा, उसको भी क्रॉल करना स्टार्ट कर देगा। एंड आई कैन एक्चुअली सब्सक्राइब टू अ पब्लिक नेटवर्क कि कौन सोशल मीडिया पे क्या कर रहा है। सो यू कैन सी द टाइप, किसी ने कोई पोस्ट लाइक किया, लेट मी जस्ट स्टॉप द स्ट्रीम, किसी ने कोई फोटो को लाइक किया, क्रिएटेड एट, देन देयर इज अ सी आई डी, यू कैन सी ऑल द डेटा। तो मेरे पास एक एग्रीगेटेड फीड है पूरे वर्ल्ड की, पूरे सोशल नेटवर्क की, कि कौन क्या कर रहा है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज ऑफ कोर्स। सो दिस इज द क्रॉलर। ओके, तो ये क्रॉलिंग है, तो मल्टीपल पीडीएस से क्रॉलिंग सर्विस क्रॉल करते हैं, जैसे गूगल क्रॉल करता है आपकी वेबसाइट्स को एंड उसको इंडेक्स करता है, सिमिलरली दैट। ओके, देन देर इज एन एल्गोरिथमिक चॉइस। एज अ वेब सर्च इंजन यूजर्स आर फ्री टू सिलेक्ट देयर एग्रीगेटर्स। लेट से मैं ब्लू स्काई एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, बट मुझे ना सिर्फ टेक कम्युनिटी डॉट कॉम के ऊपर कुछ पीडीएस सर्वर है, मुझे सिर्फ उसकी फीड चाहिए। आई कैन जस्ट सब्सक्राइब टू दैट बिकॉज इट्स इंटरपोलेटेबल। तो मेरा ब्लू स्काई ऐप विल ओनली फेच न्यूज़ फ्रॉम द techcommunity.com। सो दैट्स द फ्रीडम आई हैव। मतलब कि यहाँ पर जो ब्लू स्काई है या फिर जो मेरा प्रोवाइडर है, वो मेरी फीड को डिसाइड नहीं कर रहा है। आई एज अ यूजर हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द फीड एंड रिकमेंडेशंस। सो दैट्स वन मोर गुड थिंग। एंड अकाउंट पोर्टेबिलिटी, सच अ गुड थिंग। अकाउंट पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या है, दैट एवरी यूजर हैज़ अ DID डॉक्यूमेंट। लेट अस से किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर वो प्लेटफॉर्म डाउन चला गया या फिर वो प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर मुझे वो प्लेटफॉर्म पसंद नहीं है, मुझे अपना पूरा डेटा लेकर किसी और के नेटवर्क पे जाना है, मुझे इंस्टाग्राम से ट्विटर के ऊपर मूव करना है या फिर ट्विटर से इंस्टाग्राम के ऊपर मूव करना है। आई कैन जस्ट मेक अ माइग्रेशन रिक्वेस्ट एंड ऑल ऑफ माई डेटा इज पोर्टेबल। वो पूरा का पूरा डेटा माइग्रेट हो जाएगा एंड नाउ माई सेम डेटा, सेम फॉलोअर, सेम लाइक्स आर ऑन द इंस्टाग्राम। So that is how basically you can even move between the networks. So that is account portability. We assume that personal data server may fail anytime, right? Of course, either by going offline it's entirely or by seizing services for a specific users. मतलब कि users को block कर सकते हैं। तो इस point पे ऐसा नहीं है ना कि अगर आपने किसी user को block कर दिया, now he is blocked. The goal of the AT protocol is to ensure that users can migrate their account to a new PDS server without servers involvement. तो यहाँ पर एक ना CLI tool आता है जिसका नाम है GOAT। मैं आपको दिखाता हूँ। GOAT CLI tool for the PDS AT protocol. So what you can basically do is, yeah, this is the one, the GOAT matlab is go AT. Okay, so that is how the GOAT is made. So GOAT basically क्या करता है, ये एक CLI tool है, you can just brew install this particular CLI tool and आप इसमें क्या कर सकते हो, you first do a login. So GOAT resolve, ये मान लेते हैं मेरा एक PDA सर्वर है, तो ये रिजॉल्व हुआ। देन व्हाट आई कैन बेसिकली डू इज, अगर मैं आपको यहाँ पे लॉगिन दिखाता हूँ, गोट एक्सपोर्ट, तो जो भी आपकी टीम है, तो यू कैन बेसिकली फर्स्ट डाउनलोड सम डेटा फ्रॉम देयर एंड देन यू कैन बेसिकली अपलोड द बैकअप टू सम अदर सर्वर एंड आपका पूरा का पूरा जो डेटा है, जो DID है, जिसको आपने क्रिप्टोग्राफिकली साइन किया, वो मूव हो जाएगा फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर एंड नाउ यू आर अनब्लॉक्ड। ओके, सो दैट वाज द बेसिकली थिंग ऑफ द इंटरपोलेटेबिलिटी एंड द अकाउंट पोर्टेबिलिटी। ओके, सो DID डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या होता है, दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। तो इसके अंदर बेसिकली व्हाट हैपेंस इज यू साइन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, आपके अलावा आपका डेटा कोई और एक्सेस नहीं कर सकता है। यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग यू कैन मूव द डेटा बिटवीन द मल्टीपल PDS सर्वर्स। तो ये था पूरा का पूरा AT प्रोटोकॉल। एंड AT प्रोटोकॉल का अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, आई मीन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये PDS सर्वर है, इंटरपोलेशन। तो दिस इज बेसिकली द आर्किटेक्चर ऑफ द AT प्रोटोकॉल। सबसे पहले लेयर के अंदर क्या होगा, आपके पास एक DID होगा, दैट इज योर डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिफायर। देन यू हैव अ हैंडल जो बेसिकली आपका डोमेन नेम है एंड यू हैव सम साइनिंग कीज जो आपके रिपोजिटरी के अंदर है। आप ये तीन चीज़ें आपको ओन करनी होंगी एंड उसके बाद आप एक PDS के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। PDS क्या होता है,
पर्सनल डेटा सर्वर जो आपकी रिपॉजिटरीज को और आपके लेक्सिकन को इम्प्लीमेंट करता है। रिपॉजिटरी मतलब यूजर का डेटा इज नोन एज अ रिपॉजिटरी, एंड लेक्सिकन क्या होता है कि हाउ दिस पीडीएस विल इंटरेक्ट, मतलब इसका एपीआई स्कीमा क्या होगा। देन देर इज अ रिले फायरहूज जो बेसिकली क्या करता है, एग्रीगेट करता है सभी नेटवर्क डेटा को। तो ये रिले क्या करेगा, बेसिकली मेरे पीडीएस सर्वर से फ्रीक्वेंटली डेटा को कलेक्ट करेगा। पीयूष ने क्या लाइक किया, किसी ने क्या लाइक किया, तो वो सब डेटा ये रिले कलेक्ट करेगा। एंड ये रिले क्या करता है, जो पब्लिक डेटा है उसको एक एग्रीगेटर और लेबलर में सेंड करता है। एंड एग्रीगेटर से आप क्या कर सकते हो, आप अपने ऐप व्यू के अंदर उस डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। नाउ ऐप व्यू का मतलब क्या होता है, ऐप व्यू मतलब कि इट्स अ पब्लिक एपीआई जहां से आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया। एंड देन दिस ऐप व्यू बेसिकली गिव्स यू एन एपीआई एंड पॉइंट्स, एंड एपीआई एंड पॉइंट से आप क्या कर सकते हो, या तो आप ब्लू स्काई का ऑफिशियल ऐप यूज कर सकते हो टू सी द फीड, आप खुद की भी एक एप्लीकेशन बना सकते हो, या फिर आप एक CLI एप्लीकेशन बना सकते हो। यू हैव द फुल फ्लेक्सिबिलिटी कि मेरे को उस फीड को कैसे कहाँ देखना है, क्या फिल्टर्स अप्लाई करने हैं, एंड फाइनली द डेटा इज सर्व टू द यू। सो दिस इज बेसिकली द implementation of AT protocol. Completely decentralized, anyone can host their PDS, anyone can control the PDS. Users have the full flexibility to move between one PDS to another PDS, and सारा डेटा रिपोजिटरी के अंदर स्टोर्ड है। सो यूजर्स इसको साइन करते हैं क्रिप्टोग्राफिकली, एंड दे कैन टेक their data repo, move from one platform to another platform. So technically no one has the full control over everything. So that was the whole motive behind this AT protocol, which was made in Twitter, okay, like backed by Twitter. और जो ब्लू स्काई एप्लीकेशन है वो बेसिकली AT प्रोटोकॉल का एक इम्प्लीमेंटेशन है। सो सच अ ब्यूटिफुल थिंग। तो इसके बारे में आई वॉज एक्चुअली रीडिंग फ्रॉम कपल ऑफ मंथ्स, एंड आई लव दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। फॉर सम रीजन्स इतना पिकअप नहीं किया है। दिस इज नॉट समथिंग न्यू, दिस इज एक्चुअली अ वेरी ओल्ड टेक। ये 2019 में स्टार्ट हुआ था, एंड 2022 में आई थिंक इट वेंट पब्लिक, इट गॉट पब्लिक, ओके, ओपन सोर्स हुआ था। बट लेट्स सी दैट मे बी इन फ्यूचर ऐसी चीज़ें या फिर इसका कुछ और एक वर्जन आ सकता है विच कैन मेक अ ब्रेक थ्रू, but this was about AT protocol. So I hope in this particular quick video you learned something new, you learned something new and interesting. So that was all about this particular video. It was a very short video, and video कैसा लगा आप मुझे comments में ज़रूर बताना. What are your thoughts about the AT protocol? Do let me know in the comment section below. And that was all about this particular video. So मिलते हैं हम आपको next video के अंदर. Video अच्छा लगा तो like and subscribe ज़रूर करना. Let's meet you in the next one. Until then, bye bye and take care.